जेईई मेन परीक्षा 1 सितंबर से और 6 सितंबर के बीच की जाएगी, जबकि नीट की परीक्षा को 13 सितंबर को सुनिश्चित किया गया है। और आपको ये भी जिज्ञासा होगी कि जेईई एडवांस को कब होना है, तो 27 सितंबर 2020 को उसकी भी परीक्षा की तिथियों को निश्चित किया गया है। Welcome to this video. I am Ismatara, reporter with The Wire. As the exam dates for the NEET as well as JEE exams come closer, students across India are demanding that the exams be cancelled or postponed to a later date. While the JEE exams are supposed to be conducted from 1st to 6th September, the NEET exams are to be held on the 13th of September. From international environmental activist Greta Thunberg to Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia, from Congress leaders to West Bengal CM Mamta Banerjee, all are raising concerns over holding the two exams amid the pandemic. More than 8 lakh students have registered for the JEE exam, while more than 15 lakh students have registered for the NEET exam this year. The JEE exam for engineering aspirants are usually held in April, while the NEET exams for medical aspirants are usually held in May every year. The two exams have been postponed twice already to restrict the spread of coronavirus in the country. While the National Testing Agency has tried all ways to convince the students to come and write the exam, the students are not ready to budge. The agency has increased the number of centers this year. The agency has made available admit cards online. The agency has also said that they will take all precautionary measures such as they will ensure the availability of sanitizers at the centers, as well as they will follow the protocol of social distancing at the centers. Apart from the COVID-19 threat, many students coming from areas such as flood-hit areas such as Bihar, Gujarat and Assam, or rain-hit districts of Kerala, or those students from Jammu and Kashmir who have internet restrictions, are saying that they will not be able to sit in the exams. Also, due to the limited transport facilities, commute has become very difficult for students who reside in places where there are no centers. Many political parties such as the Congress, the Trinamool Congress, the Rashtriya Janata Dal and the Aam Aadmi Party, among others, have expressed concerns over the issue and have demanded from the centre that they come up with alternate solutions to admitting these students. Let's hear from these protesting students. हम प्रोटेस्ट जो करेंगे वो पीसफुली हो, हंगर स्ट्राइक करेंगे और काला पट्टी लगाकर हम इस कानून का, इस फैसले का पुरजोर विरोध करेंगे। SOPs में जो कहा गया है मास्क 3 घंटे मास्क लगाकर और हैंड ग्लव्स पहनकर ना तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व किया जा करना उतना आसान है, ना ही OMR शीट भरना आसान है। मैं पिछले 2 सालों से कोटा में रह के IIT की तैयारी कर रहा हूं। जैसा हम सब जानते हैं, कोविड-19 के देश में रोज़ 70,000 मामले आ रहे हैं और 1,000 मौतें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम के कई जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस समय सरकार द्वारा यह निर्णय लेना कि नीट और जेईई की परीक्षाएँ सितंबर माह में ही आयोजित की जाएंगी, जिसमें लगभग 30 लाख बच्चे बैठते हैं। यह फैसला हमें बहुत ही आश्चर्यचकित और भयभीत करता है। कई राज्यों में लॉकडाउन है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ठप है। इस समय सरकार द्वारा हमें मजबूर करना कि हम अपने घरों से निकलकर ट्रांसपोर्टेशन, रहने की और कोविड से संक्रमित होने की सारी समस्याओं को जूझते हुए परीक्षा दें, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए पूरे देश से लगभग 30 लाख बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि कृपया परीक्षाएं कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी जाएं। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और युवा देश होते हुए भी लगभग 1 हफ्तों से हमारी बातों को सरकार अनसुना कर रही है। नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे बेटे का IIT का एग्ज़ाम है। इस महामारी में परीक्षा को लेकर बच्चे और अभिभावक डरे हुए हैं और चिंतित भी हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि परीक्षा का डेट आगे बढ़ाएं। छात्रों का ये कहना है, आपने हम लोगों को घर भेज दिया लॉकडाउन पे और हम लॉकडाउन पे अपने अपने घरों में हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। कोरोना के केसेस जब लॉकडाउन हुई थी, जब एग्जाम्स पोस्टपोन हुए थे, तब करीब 1000 या 2000 पर डे आ रहे थे। आज हम कम से कम 70,000 पर डे आ रहे हैं। 3 मिलियन इंडिया क्रॉस कर चुका है। इस स्थिति में आप कह रहे हैं कि बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एंड हमारे माँ बाप के हेल्थ को खतरे में डालते हुए, खुद हमारे हेल्थ को खतरे में डालते हुए, जब इस सिचुएशन को हम जानते हैं कि पब्लिक हेल्थ की क्या सिचुएशन है, देयर आर नो डॉक्टर, देयर आर नो हॉस्पिटल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स, देयर आर नो बेड्स, डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर एंड हेल्थ केयर वर्कर्स आर ओवरस्ट्रेच्ड। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो लूट मची हुई है सब लोगों को मालूम है। दूसरी तरफ पेरेंट्स की आमदनी में गिरावट आई है, लोगों की रोजगार जा चुकी है।
वो हजारों रुपया कैसे खर्च करके बच्चों को ले जाएंगे। एंड इसी में द अनदर एस्पेक्ट दैट हैज कम इज इट इज ऑफ people who are impacted by natural calamities like Bihar, like Assam, like within Telangana and Andhra Pradesh where floods are there, वो लोग कैसे निकल के आएंगे या नाव में तैर करके आएंगे? स्टूडेंट्स बहुत परेशान, हद से ज्यादा परेशान। मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं आपसे जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट मुझे बार बार फोन कर रही है, वो मेंटल ट्रॉमा में जा चुकी है, डिप्रेशन में जा चुकी है, हमें कह रही है कि हम एक्सट्रीम स्टेप्स लेने की थॉट्स हमारे मन में आ रहे हैं। हमने जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इस पूरे चर्चा में उनके बारे में कोई जिक्र तक नहीं है। स्टूडेंट्स ने साफ तौर पे बोला कि भाई अगर आप हमें एग्जाम देना चाहते हैं तो आप जो हमारे हॉल टिकट है उसको आप डिक्लेयर कर दीजिए कि इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये फ्री ट्रैवल का टिकट है, और इसमें अगर हमको कुछ भी होगा तो हमारे परिवार को पैसा मिलेगा, हम लोगों को फ्री ट्रीटमेंट मिलेगी और हम लोगों को फ्री में ले जाएंगे। तो मैंने उनसे क्यूरियसली पूछा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? बोल रहे भैया जब इनको इलेक्शन रैली में लोगों को ले जाना होता है, ये ट्रेन बुक कर देते हैं, बस बुक कर देते हैं, भाई हम लोगों को एग्जाम ले जाने के लिए फ्री में नहीं ले जा सकते हैं जब हमारे पास पैसे नहीं है। मेरा नाम अंकित चौरसिया है, मैं यूपी के देवरिया का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 2 साल की IIT JEE की प्रिपरेशन कोटा से की हुई है। आज हमारा देश जहाँ कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं पे हमारी सरकार IIT JEE और नीट की परीक्षा कराने जा रही है, जो कि निर्णय बिल्कुल गलत है। आज हज़ारों की संख्या में मौतें हो रही हैं। आज हमारे ट्रांसपोर्टेशन सुविधा सही नहीं है कि बच्चे अपने सेंटर्स तक सही से पहुँच पाएँ। आज बाढ़ से कितने क्षेत्र प्रभावित हैं, बच्चों को सेंटर्स पर खतरा है, कोरोना फैलने का खतरा है। बोला जा रहा है कि SOPs का पालन किया जाएगा, लेकिन पिछले दिनों में जो एग्ज़ाम्स हुए उसमें देखा गया है कि हज़ारों की संख्या में बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। लोग बोल रहे हैं कि बच्चों की प्रिपरेशन नहीं है इसलिए वो पोस्टपोन कराना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारी प्रिपरेशन है, लेकिन हम इसलिए पोस्टपोन कराना चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि वो इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करें। हमारे पार्लियामेंटेरियन वो वर्चुअल क्यों काम कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल क्यों काम कर रहा है? अगर ऐसे सब लोग वर्चुअल काम कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए भी, सारे एग्ज़ाम के लिए भी उसे भी वर्चुअल क्यों नहीं लिया जा रहा है? अगर वर्चुअल एग्ज़ाम लिया जाए तो हम कल देने को एग्ज़ाम तैयार हैं। एग्ज़ाम से हम डर नहीं रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी करके रखे हैं। और जो लोग बोलते हैं कि ये लोग एग्ज़ाम से पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, एग्ज़ाम से डर रहे हैं इसलिए एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, इसे पोस्टपोन कराना चाहते हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ एग्ज़ाम तो 3 मई को तय होना था, तो तय हुआ था, हम उसी हिसाब से प्रिपरेशन करते हुए अब तक आए थे और आगे भी कर रहे हैं। और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, हम उस ओर बढ़ चुके हैं। I think there are 2 views about this important matter. I have talked to several parents, I have talked to some teachers. One view is that the exams cannot be postponed indefinitely because the sessions have to start sooner or later. And in any case, it is unlikely that the COVID situation will be fully controlled even in a month or 2 or even 3 months. So they think that after taking due precautions, the examinations must be held so that those who are selected can plan accordingly and those who are not selected can make their own plans. The other view is that they should be postponed for some time. But I think on balance, I think these 2 examinations are only, a part of the entire examination system in the country. They are not the only examinations. So if COVID-19 is going to continue for some time, my own impression is that the examination should go on. In any case, JEE examination is held twice a year. So those who cannot appear now can always appear in January. I think center would have considered the students' demand. The matter was also taken to the Supreme Court. I think the center would have also consulted the medical experts, and then only it would have reached a decision. Similarly, a whole lot of other examinations are conducted by the State Public Service Commissions, Railway Services Recruitment Board, banking examinations, and so on. So I think the government has taken a call to go ahead with the exam. My only hope and expectation is that proper arrangements should be made for transportation and waiting of the parents, and sufficient physical distance will be ensured between the students so that the possibility of catching infection can be minimized. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।